important. First of all, मैं उसका explain करना चाहता हूँ आपको. After that, we move to the topic so that you feel interest in this. Okay. All of you, I believe. Okay. I raise one question from all of you. Please give me an answer. Do you think you are a programmer or an end user? We teach you coding and you are doing programming, है ना? When you are in industry, suppose you are selected in InfyTQ and you are getting job in Infosys with a good package. What do you think? You are a programmer, developer, or end user? Guys, write your response in the chat, please. What do you think? What's your role? If you confuse what I ask, I simply said you are struggling for InfyTQ. है ना? Right now आप prepare कर रहे हैं उसके लिए. So what do you think? You are a programmer or an end user? Do we have ITCSE students in this class? Uh, yes, sir, this audience is ITCSE, but we haven't received any responses. It is very simple question. I just ask you, are you a end user or a programmer? Guys, ऐसे नहीं चलेगा. You have to respond. Otherwise, finally, sir, we are getting some responses and they're saying that their programmer, Vaibhav and Faisal have responded. I see it. Yes, you are a programmer. So who is programmer? Programmer is someone who makes the life of end user easy. अब ये क्या होता है? देखिए आप सब जब इंडियन रेलवेज की वेबसाइट को यूज करते हैं टिकट बुकिंग के लिए, at that time you are a end user. At the time you are a end user, and whoever is developed that website, that person or a group of persons are basically a programmer. So when they build that website, or when they're getting the idea to build it, that website for Indian Railways, they consider all kind of pitfalls or exceptions or unwanted occurrence. Unwanted occurrence means like वहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पैसेंजर्स, किसी ने वहां पे नेगेटिव वन डाल दिया, तो क्या वो नेगेटिव वन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? वहां पे लिखा हुआ है कि आपको कौन सा सीट चाहिए, साइड विंडो, साइड सीट चाहिए, विंडो सीट चाहिए, किसी ने वहां पे एब्रप्ट स्ट्रिंग डाल दिया कुछ भी, है ना, जो वहां पे नहीं होना चाहिए, क्या वो एक्सेप्ट करता है? नहीं करता है. In today's topic, what you are going to learn that whenever you write program, आपका सेंस थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए. ब्रॉड इन द ब्रॉड का मतलब क्या है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल, आपको टीचर ने क्लास में बोला राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, एंड I know that almost 90% of you can solve this problem. You can write a code to find out the factorial of a number. You can find 5 factorial, that is 120, and you give the answer, sir मेरा factorial code run हो गया, है ना? But in industry ऐसा नहीं होता है. Industry, if they give you to find out the factorial of a number, then you have to write a case if the zero factorial occur, if the some negative value is entered. You understand this point? ऐसी चीजें, वो साइड एरियाज को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है जो एरियाज हमारे बाउंड्रीज के बाहर है. लाइक मैंने बोला ना जीरो फैक्टोरियल, अगर यूजर वहां पे जीरो डालेगा तो तब क्या आएगा? अगर यूजर वहां पे कोई नेगेटिव वैल्यू डाल देता है तब क्या आएगा? तो आपको एज अ प्रोग्रामर खाली ये नहीं कहना है कि मैंने फैक्टोरियल कोड लिख लिया.
आपको एज अ प्रोग्रामर जितने भी पिटफॉल्स, जितने भी अनवांटेड इनपुट्स हो सकते हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ कोड लिखना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। यहां तक ये पॉइंट आपको क्लियर है कि नहीं है, आप लोग बताएं पहले, फिर मैं मैं इसके एग्जांपल्स में जाऊंगा। या जस्ट स्टार्ट में क्लियर या नो, अगर बेसिक में डाउट है कि क्यों कर रहे हैं, इफ यू हैव डाउट्स लेट्स क्लियर देम राइट नाउ, अदरवाइज विल गो इनटू द टॉपिक। सो सब कह रहे हैं क्लियर है, आप आगे जा सकते हैं। सो इन नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिखा है, जहां पे एक नंबर में वैल्यू है 10, डिवाइडर में वैल्यू है 0, रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड डिवीजन बाय डिवाइडर। तो आप लोग को ये बात पता है कि 10 डिवाइडेड बाय 0 इज सम नॉट डिफाइंड वैल्यू। इस कोड के अंदर अगर आप देखें, सपोज करें आपने ये कोड लिखा और आपने रन किया, है ना, और आपने ये कोड एग्जैक्टली अपने ब्रदर या सिस्टर को दिया जो कि आपसे घर में छोटे हैं, ठीक है। आपने कहा कि सपोज कि आपने अपने छोटे ब्रदर या सिस्टर को बुलाया और उन्हें बोला कि मैंने आपके लिए कैलकुलेटर डिजाइन करा है, एंड दिस इज द यूज इट। आप कोड नहीं बता रहे, आप जब गेम्स खेलते हैं तो आपको उसके पीछे का कोड नहीं पता होता, आप डायरेक्ट खेलते हैं। सिमिलरली आपने अपने ब्रदर या सिस्टर के लिए एक छोटा सा कैलकुलेटर डेवलप किया और आपने उन्हें बोला कि यूज करके बताओ ये कैसे चल रहा है, और आपका ब्रदर और सिस्टर बहुत इंटेलिजेंट है मैथमेटिक्स में, उसने डिवाइडेड बाय जो डिवाइडर है वो वैल्यू 0 ले ली, जैसे मैंने यहाँ पे इस कोड में ले रखी है। तो एकदम से इस तरीके से स्क्रीन आएगा, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट फाइल मेन डॉट पी वाई। आप ये सोचे कि एज अ एंड यूजर अगर आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन आ जाए, डू यू लाइक दैट प्रोग्राम और डिसलाइक दैट प्रोग्राम? प्रोग्राम तो सही रन कर रहा है, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डू यू लाइक इट और यू डिसलाइक इट? आंसर इट, लाइक इट और डिसलाइक इट। Dislike it. गुड, बट यू हैव टू राइट ऑन अ चैट बॉक्स आई बिलीव, यस यू डिसलाइक इट। आप नेक्स्ट टाइम इस तरीके के प्रोग्राम पे या इस तरीके के कोड को देखना ही नहीं चाहेंगे। आप ये सोचिए ना, आप इन्फोसिस में हैं, आप बहुत अच्छे डेवलपर हैं, आप किसी यूएस बैंक के लिए कुछ डेवलप कर रहे हैं। अब यूएस बैंक के लिए आपने कुछ डेवलप करा और आपने वहां पे उसको लगा दिया, सॉफ्टवेयर तो रन हो रहा है, आपने टेस्ट वेस्ट करके वहां लगा दिया, लेकिन वहां पे जो एंड यूजर है, जो बैंक का मैनेजर, जो एंड यूजर है, वो कुछ वैल्यू डालता है और ऐसा आउटपुट आता है। तो व्हाट इज द इंप्रेशन ऑफ इन्फोसिस ऑन दैट बैंक मैनेजर? वो नेक्स्ट टाइम क्या आपकी कंपनी को प्रोजेक्ट देगा? क्या वो मेंटेनेंस के लिए आपकी कंपनी को प्रोजेक्ट देगा? कभी नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने एंड यूजर के लिए कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूज जहां पे आउटकम एम्बिगियस हो सकता है, जो अनवांटेड है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड्स का यूज करके आपको उसको हैंडल करना है। मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बेसिक सा कोड भी लिखें। जब आप सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, बिकॉज मैं इंडस्ट्री से टीचिंग में आया हूं, तो मैंने बहुत बार ये चीज करा है। तो जब हम लोग सिस्टम पे अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जब हमें सिस्टम दे जाता है, बोला जाता है ये प्रोग्राम है, आपको इसको रन करके बताना है, तो वहां पे उनको भी पता होता है कि जो डेवलपर है, या आप लोग पाइथन डेवलपर भी हैं, आप लोग जावा डेवलपर भी हैं, आप लोग में से बहुत लोग को बहुत अच्छी डेवलपिंग लैंग्वेजेस आती होंगी। उनको पता है कि जो बच्चा यहाँ तक पहुंच गया है, जो कैंडिडेट जो इंटरव्यू में यहाँ तक पहुंच गया कि सिस्टम टेस्ट में पहुंच गया, तो उसे प्रोग्रामिंग तो आती है, बट व्हाट दे सी, वो ये चीज देखते हैं कि इसको क्या जो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स हैं, जिसे मैं बोल रहा हूँ इस टाइम एक्सेप्शन हैंडलिंग, इंडेंटेशन, क्या ये सब करना आता है कि नहीं आता है? अगर उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना आता है, उसे कीवर्ड्स वेरिएबल डिक्लेयर करने ठीक से आते हैं, उसको इंडेंट ढंग से आता है, तो यानी कि वो गुड प्रोग्रामर है कंपनी के लिए। बात ये समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वी नीड some kind of keywords in every programming language. There is some keywords that helps us for this exception handling. In Python we have these 5 keywords: try, except, else, finally, raise. Please be remember: try, except, else, finally, raise. In this slide I am just going to give you some brief idea, और आफ्टर दैट स्लाइड वी आर गोइंग टू डेप्थ ऑफ टू अप्लाई दीज कीवर्ड्स। ओके, तो आप थोड़ा सा आइडिया भी ले लीजिए, क्योंकि वो आपको क्विज में मदद करेगा, ठीक है। क्विज, अभी हम लोग क्विज पूछेंगे तो आपको मदद करेगा, ठीक है। तो आप इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, और नहीं समझ आए तो प्लीज राइट ऑन चैट बॉक्स की मुझे ये चीज समझ नहीं आया है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूं। ट्राई, इन अ ट्राई ब्लॉक वी जस्ट राइट अ कोड
हम लोग जब भी कोई कोड लिखेंगे, जैसे वहां डिवीजन बाय जीरो वाला कोड था, उसको हम क्या लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। ठीक है। अगर सम एरर इज ऑकर्ड, तो एरर बताएगा कौन, उसके लिए रेज, सबसे लास्ट में देखिए रेज कीवर्ड लिखा है। रेज ये बताता है कि एरर, किस तरीके का एरर ऑकर हुआ और कहां पर हो सकता है। अब उस एरर को हैंडल कौन करेगा, उस एरर को हैंडल करेगा एक्सेप्ट। ठीक है। वैसे प्रोग्रामेटिकली अगर पूछा जाए तो ट्राई और एक्सेप्ट ही कर लेता है काम। ठीक है, हमें रेस का जरूरत बाद में पड़ता है। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं जिससे आपको प्रोग्रामिंग करने में थोड़ा इजी हो। ट्राई, ट्राई के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड जिसमें आपको डाउट है कि अनवांटेड रिजल्ट्स दे सकता है, उसको हमने ट्राई में डाला। कॉल कहां से होता है, रेस, रेस से कॉलिंग होगी कहां पे जाएगी, एक्सेप्ट में। और आप ट्राई से भी डायरेक्टली एक्सेप्ट कॉल कर देंगे। उसके बाद अगर एक्सेप्ट पे कोई कोड रन नहीं होगा, है ना, सपोज आपके एक्सेप्ट ब्लॉक में वो कोड रन नहीं, मतलब आपका एरर नहीं आया, सपोज, जरूरी सुना हमेशा हर बार कोड में एरर आएगा, एरर आएगा तभी एक्सेप्ट में जाएगा ना। एरर नहीं आया, एरर नहीं आया तो कहां पे जाएगा कोड रन होने के लिए, एल्स में जाएगा। ठीक है, एरर नहीं आएगा तो कहां जाएगा, एल्स में जाएगा। और फाइनली हमेशा रन होगा, फाइनली इन एनी केस, चाहे एरर हो चाहे एरर ना हो, फाइनली हमेशा रन होगा। ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली रेज। ये शॉर्ट समरी में आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। So students अभी तक कोई डाउट रेज नहीं किया, so we can move forward with specifics. ओके, सो इन नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू शो यू दैट कोड जिसने हमें वहां पे एरर दिया था, और जहां पे एक स्टूडेंट ने मुझे रिप्लाई किया था, हाँ सर मैं ऐसे कोड को पसंद नहीं करूंगा। नहीं करोगे ना, तो देखो फिर उस कोड को कैसे यूज करना है। आप देखिए साइड पे ट्राई लिखा है मैंने, सेम कोड है। ट्राई, नंबर इक्वल्स टू 10, डिवाइडर इक्वल टू 0, रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय डिवाइडर। और देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट कॉल हुआ, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर एज एरर, और प्रिंट में क्या हुआ, डिवीजन बाय जीरो। नाउ यू लाइक इट और डिसलाइक इट। और फिर मैं रिपीट करूंगा इस कोड को। ट्राई के अंदर वो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जिसमें आपको लगता है कि अनवांटेड आउटपुट्स आ सकते हैं। उन अनवांटेड आउटपुट्स के लिए हमने यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है। मैंने उस टाइम बोला था रेज इज नॉट मैंडेटरी, रेज तब लगाएंगे जब एक से ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो, किसके, एक्सेप्ट के। लेकिन यहाँ पे एक ही एक्सेप्ट है, तो ट्राई में अगर कोड में प्रॉब्लम होगा तो वो डायरेक्ट इसी एक्सेप्ट में जाएगा। तो जीरो डिवीजन एरर एज एरर, और उसको उसने प्रिंट कर दिया, तो नीचे लिखा हुआ आया डिवीजन बाय जीरो। एनी डाउट? So doubt नहीं है, and they're saying they like the code now because exception handling हो रही है. सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं आप? So I'm saying that they're saying they like the code now because exception handling हो रही है, ओके, and गुड। there are doubts. ओके, सो इट मीन्स यू कैन से द पेयर ट्राई एंड एक्सेप्ट इज एसेंशियल, है ना। अभी तक जो हमने स्टडी करा, हो सकता है आपके इनफीटीक्यू में एक एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आ जाए कि विच कीवर्ड्स आर एसेंशियल, तो ये दो कीवर्ड्स एसेंशियल है, ट्राई और एक्सेप्ट। अब यहाँ ना मैंने फाइनली लिखा है, ना मैंने यहाँ पे एल्स लिखा है, ना मैंने यहाँ पे रेज लिखा है। तो इसका मतलब ये दो कीवर्ड जो है दैट इज एसेंशियल, ट्राई और एक्सेप्ट, ये होना ही चाहिए। खाली ट्राई से काम नहीं चलेगा, खाली एक्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, इन दोनों का पेयरिंग होना जरूरी है हमारे कोड को रन करने के लिए। यहां तक तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको कोई डाउट नहीं था, है ना, जैसे आप लोगों ने मुझे बताया। नाउ वी मूव अहेड। फिर ये ट्राई और एक्सेप्ट कैसे कैसे काम कर सकते हैं, इसके कौन कौन से फ्लेवर्स हमारे लिए अवेलेबल है एज अ प्रोग्रामर, मेरे पास क्या क्या इनके लिए अवेलेबल है। तो मेरे पास फर्स्ट टेक्निक है दैट इज सिंगल ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक विद सिंगल एक्सेप्शन। मैं एक ही ब्लॉक लिखूंगा ट्राई और एक्सेप्ट का, और उसमें एक ही एक्सेप्शन होगा, खाली सिंपल सी बात ही बोल रहा है, एक सिंगल ट्राई और एक सिंगल ट्राई का एक सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, सिंगल ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक विद मल्टीपल एक्सेप्शन, मतलब ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक एक ही है लेकिन एक एक्सेप्ट में मल्टीपल एक्सेप्शन होंगे। अभी हम देखेंगे वो क्या कह रहे हैं। एंड थर्ड बोल रहा है सिंगल ट्राई एंड मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक, एक ट्राई है और बहुत सारे एक्सेप्ट ब्लॉक उसके रिस्पेक्ट में लिखे हुए हैं। तो मैं एक एक करके फिर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, सिंगल ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक विद सिंगल एक्सेप्शन। ठीक है। आपके पास देखिए ट्राई ब्लॉक में क्या लिखा है, ट्राई में नंबर इक्वल टू 10, डिवाइडर इक्वल टू 0, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय डिवाइडर, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर एज एरर, प्रिंट एरर डिवीजन बाय जीरो। इसमें क्या है, सिंगल ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है,
और एक ही एक्सेप्शन है जीरो डिवीजन एरर, इसी कोड को हम लेके चल रहे हैं, तो ये हम लोग को पहले से ही क्लियर था, है ना। तो हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं, सिंगल ट्राई। सॉरी मैं इसको रब करता हूं ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं दोबारा से। ओके, सिंगल ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक विद मल्टीपल एक्सेप्शंस। सिंगल ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक होगा विद मल्टीपल एक्सेप्शन, मतलब एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है और उस एक्सेप्ट के अंदर एक से ज्यादा एक्सेप्शंस अगर हमारे पास हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंगल ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक विद मल्टीपल एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल द सेम कोड जो भी आपने लिखा है वहां पे अगर आप देखें, ट्राई के रिस्पेक्ट में एक्सेप्ट के अंदर एक जीरो डिवीजन एरर लिखा हुआ और एक वैल्यू एरर लिखा है, तो सिंगल ट्राई ब्लॉक है, लेकिन एक एक्सेप्ट के अंदर हमने मल्टीपल एक्सेप्शंस को लिख दिया। इस कोड में कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। यू जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं इस कोड को ठीक कर देता हूँ आप लोग के लिए। आई जस्ट हैव अ क्लास 5 मिनट्स बिफोर, तो पता नहीं कि कैसे रह गया इसके अंदर, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो फार सर कोई डाउट नहीं पूछा है किसी ने? ओके, नाउ माय स्क्रीन इज ओके। यस सर, इट्स बेटर नाउ. ओके फाइन, थैंक यू। Suppose what we are going to explain you here, single try except block with multiple exception. So we have a single try block starts from here to here, and we have two exceptions here. One is zero division error and other is value error. Okay, and what they print, enter valid integers. Okay, from this last point, divided underscore integers, a function is called, and inside this function there is while true, a loop is going on. Here we take numerator as an input in A and denominator as an input in B. Now what is the data type of A and B? Anyone? What is the data type of A and B? If we take an input, what is the data type of A and B? Please answer it quickly. They're saying the value would be string. Very good. Because we input takes a value string, so A will contain some string value, B is also contain some string value. Inside that try, we write print int A. It means we change the data type of A to int, we change the data type of B to int. So suppose, for example, in first case, I am taking A as 2 and B as 3. Okay, in first case, I'm taking A as 2 and B as 3. When I input A and B, they are acting as a string. Their data type is string. Inside the try, it changes the data type of A to integer. It changes the data type of B to integer. When you divide these two, it will print it out. There is no error in this case. Okay. In second case, suppose I am taking A as 2 and B as 0. Now, if you divide, if you give A to 2 and B to 0, 2 divided by 0, it raises a zero division error. It raises a zero division error. And inside this except what is written, enter valid integers. Okay. Then in third case, suppose in A we pass some string A, B, C. In B we pass 0. Again it will change this one, this ABC to string to integer. It tries to convert string to integer, so it will raise value error, and both zero division error and value error will print enter valid integer. So in a single try, we write a single except with multiple exception. One is zero division error, other is value error. Are you able to understand or not? It is clear to you or not? So there are no doubts. Students अगर कोई doubt है तो please लिख लीजिए जल्दी से chat box में. Otherwise we'll move on to the third topic यहाँ पे, single try with multiple except blocks. These are very important topic, believe me. If you have any doubt, please raise your hand. Please ask us. We are happy to clear your doubt. No issues.
So we have received some responses saying that it's clear to them. Um, I believe we can move on to the next topic, and if someone has any doubts, they'll raise it up, and we can come back to this topic again. Okay, fine, sir. You share my WhatsApp number to them if they have doubt when they go through the topics. Then we will entertain at the time. Okay. Single try with multiple except block. So it means you have a single try and you have one or more except, and within that one or more except you write exception. For example, same code, we write the same code. The reason is it will give you a brief idea if the someone asks in you in interview, okay, how can you do this, how can you do this. So from the single code you can generate different ideas. Okay, in this case single try and multiple except block is there. If you see same code, divide underscore integer function is called. We take a as an input, another input is in b. We print division of the two number. We write two except here, not a single except. We write two except here, except zero division error, that is enter non zero denominator, and value error, print enter integer. So now the question arises that you never ask, मैंने पूछा भी था आप लोगों से. Now question arises in the second case, in the third case only. In the third case, when I give an input as a as abc, b equal to 0, is a zero division error occur or a value error occur? And no one from you answer it. Ask it even कि सर क्या जीरो डिवीजन एरर ऑकर होगा या ये एंटर वैलिड इंटीजर किसकी वजह से आया. भाई मैंने तो एग्जांपल लिया था किसके लिए, वैल्यू एरर के लिए, है ना. लेकिन यहाँ पे बी में भी तो हमने जीरो डाल दिया. तो ये भी तो पॉसिबल है कि ये जो एंटर वैलिड इंटीजर आ रहा है वो जीरो डिवीजन एरर की वजह से आ रहा हो सकता है ना. देखो आपको क्वेश्चन रेज करने हैं, बिकॉज व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन यू विल गेट द आंसर, है ना. इसका आंसर मिलेगा जब अभी हम लोग एक्सेप्शंस की हायरार्की को पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन कैसे ऑकर होता है, ठीक है, उसकी हायरार्की कैसे वर्क करती है, तो वहां हम students, डिस्कस करेंगे. यहाँ पे लेकिन जैसा मैं टू और थ्री में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. टू और थ्री कोड में, मतलब सेकंड सिंगल ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक विद मल्टीपल एक्सेप्शन, थर्ड सिंगल ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक is basically works where the depends upon the line of code. If you see यहाँ पे line of code बढ़ गया है, बट ये मोर प्रिसाइज है. लाइन ऑफ कोड बड़ा है बट मोर प्रिसाइज है. यहाँ पता चल रहा है कि भाई जीरो डिवीजन एरर कब ऑकर होगा, और प्रॉपरली लिखा गया है एंटर नॉन जीरो डिनोमिनेटर. सेकंड केस जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वैल्यू एरर ऑकर हुआ तो वहां पे लिखा गया एंटर इंटीजर वैल्यू, एंटर इंटीजर. सो दिस इज मोर प्रिसाइज एंड मोर क्लियर, बट एट द कॉस्ट ऑफ लाइन ऑफ कोड, या लाइन ऑफ कोड आपका बढ़ गया है. तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है वहां पे जब आप कोडिंग करते हैं. तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि लाइन ऑफ कोड का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लाइन ऑफ कोड से आपको पता है कॉस्ट जनरेट होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की, ठीक है. तो वहां पे आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है कि वर्क भी हो जाए और लाइन ऑफ कोड भी कम हो. एनी डाउट टिल दिस स्टेप प्लीज? यस सर. सर जब आपने क्वेश्चन पूछा था लास्ट वाली स्टेटमेंट पे, आप अगर आप एक स्लाइड पीछे जाएंगे, उसमें दो डाउट्स हैं. यहाँ पे पहला डाउट है कि अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर आफ्टर एंड डिवीजन जो हम कर रहे हैं, तो क्या वो एग्जीक्यूट होगा? नहीं, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा ना. आप ट्राई ब्लॉक में पहले ही अगर एक्सेप्शन ऑकर हो जाएगा, अगर इसके ऊपर होगा, अगर इंट ए डिवाइडेड बाय इंट बी के ऊपर आपने प्रिंट लिखा हुआ तो वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेट कर लेगा वो. लेकिन अगर जैसे ये स्टेटमेंट एनकाउंटर करेगा उसके बाद वो सर्च करेगा, क्योंकि एबनॉर्मलिटी स्टार्ट होगी ना प्रोग्राम के अंदर, वो आगे पहले उस एबनॉर्मलिटी को हटाने के लिए पहले वो रिस्पेक्टिव एक्सेप्ट को सर्च करेगा. अगर वो एक्सेप्ट मिलेगा तो वो पहले एक्सेप्ट को एग्जीक्यूट करेगा, कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा. राइट. आंसर जब आपने पूछा था कि वैल्यू एरर होगा या जीरो डिवीजन एरर होगा, वी गॉट रिस्पॉन्सेस दैट जीरो डिवीजन एरर होगा, where my understanding says कि वैल्यू एरर आना चाहिए. So can you explain? That I explain at exception hierarchy, so that they once see it, na, they will get the output, because they don't know the exception hierarchy. So maybe they have a little bit confusion. Still अगर आपको confusion वहां पे भी रहेगा तो आप मेरे से माइक ओपन करके at the end of the session फिर दोबारा डिस्कस कर लेना, ठीक है. क्योंकि अभी एक्सेप्शन हायरार्की आप लोग को नहीं पता होगी उतनी,
तो शायद वहां पे कहीं ना कहीं फ्लॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम वहां पे आपको एक्सप्लेन करेंगे एक बार और। ठीक है, एनी डाउट प्लीज अदर देन दिस? Uh, ये मैंने अभी टाइमिंग आपसे टाइम मांग लिया। sir, no more doubts. We can move to the hierarchy section now. तो नेक्स्ट इज द क्विज, एंड आई बिलीव आप सब पार्टिसिपेट करेंगे और आंसर देने का कोशिश करेंगे। Sir, we have gotten responses so far. हम्म। Uh, Everyone is saying the answer is D. Zero division error आएगा. बट आई नीड, मैं थोड़ा सा आपको मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैंने इससे पहले एक्चुअली क्लास ली थी, तो मैंने वहां पे कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, तो वो अभी भी बोर्ड पे है। सॉरी, आई विल रिमूव इट। And some students are now saying the answer would be A. That ओके, exception. मे बी दे सी माई चार्ट। ओके, आई विल टेक अ चार्ट, मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू। आई नीड अ लिटिल बिट एक्सक्यूज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, सॉरी। मैंने ये थोड़ा सा ये मतलब मेरे से मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, सॉरी। मैं दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली लास्ट मेरी क्लास जो हुई थी उसमें बाई चांस ये सेव रह गया, सॉरी। तो यस, जिन्होंने भी आंसर ए दिया था, दे ऑल आर राइट, एंड व्हाई दे आर राइट मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, तो फिर उसके बाद हम उसको और डेप्थ में पढ़ेंगे चीजों को। ठीक है, तो अगर आप मेरी बात समझ गए, तो बिलीव मी, इनफिटिक्यू में जो प्रॉब्लम आना है वो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और बहुत सिंपल से तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, तो आप ट्राई करना। ठीक है, मेरे साथ थोड़ा सा हेल्प करना इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और एक बार अगर आपको समझ आ गया तो डेफिनेटली यू अचीव। ओके, देखिए ये हम लोग एक सिनेरियो समझ रहे हैं, एक स्टोरी लेके समझने की कोशिश करते हैं आंसर को, और उससे फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। क्योंकि अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम इनफिटिक्यू में आना है जिसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आराम से कर लेंगे। ये सपोज कीजिए ग्रैंड मदर है, ये इनकी डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ वन एंड डॉटर इन लॉ टू, और ये इनका चाइल्ड है, डॉटर इन लॉ वन का और डॉटर इन लॉ टू का। ठीक है, सपोज कीजिए कि किसी दिन डॉटर इन लॉ वन और टू को दोनों को शॉपिंग पे जाना पड़ गया इकट्ठे। अभी तक क्या हो रहा था, डॉटर इन लॉ वन अपने चाइल्ड को नरिश करती हैं अच्छे से घर पे, ज्वाइंट फैमिली है, और डॉटर इन लॉ टू जो है वो अपने चाइल्ड को अच्छे से नरिश करते हैं, उनका अपनी ड्यूटी, उनकी अपनी ड्यूटी है। बट एट सम डे डॉटर इन लॉ वन और टू को दोनों को शॉपिंग पे जाना पड़ गया। तो क्या ग्रैंड मदर इन चाइल्ड को संभाल लेंगी, पाएंगी कि नहीं पाएंगी, ये बताइए आप। मेरा क्वेश्चन समझ आया? इज द ग्रैंड मदर कैन नरिश द चाइल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे? जो भी एक छोटे बच्चे की नीड्स होती है, क्या ग्रैंड मदर उसको पूरा कर देंगी अगर डॉटर इन लॉ वन और डॉटर इन लॉ टू अवेलेबल ना हो तो? यस और नो, प्लीज पार्टिसिपेट। ये आएगा इनफिटिक्यू में डेफिनेटली, मतलब इसके ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आना है। ठीक है ना, तो और मैं वैसे आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आप बताएं। तो वो कह रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हाँ आएगा. Yes. मतलब ग्रैंड मदर मैनेज कर लेंगे उनके Yeah. साथ। ओके, गुड, दिस इज द आंसर। अब समझना मेरी बात को। In our case this grandmother is basically exception, and this daughter-in-law is basically zero division error,
and value error. So if I am a new programmer और मुझे क्लासिफिकेशन नहीं है कि जीरो डिवीजन एरर कैसे वर्क करता है या वैल्यू एरर कैसे वर्क करता है, बट इफ आई राइट एक्सेप्शन एक्सेप्शन एरर, लाइक एक्सेप्ट एक्सेप्शन मैंने लिखा है, तब भी वो एक्सेप्शन और जीरो डिवीजन एरर और वैल्यू एरर दोनों को ही क्या करेगा, हैंडल कर सकता है. अगर मैं एज अ न्यू प्रोग्रामर, मेरे को बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, जैसे आप लोग भी लैब में जब करते हैं तो आप हर कोड के अंदर ट्राई एक्सेप्ट यूज नहीं करते हैं, तो जितने नए प्रोग्रामर्स होते हैं उनको आदत नहीं होती है. तो इफ आई एम अ न्यू प्रोग्रामर और मैंने नहीं लिखा है अपने कोड के अंदर, बट स्टिल अगर मेरे से मोर एक्सपीरियंस प्रोग्रामर जो मेरे सीनियर होंगे वहां पे, उन्होंने अगर अपने कोड में एक्सेप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, या मेरे कोड में एक्सेप्शन है लेकिन जीरो डिवीजन नहीं है सपोज, या वैल्यू एरर नहीं है मेरे कोड में, तब भी एक्सेप्शन उसके ऊपर वर्कआउट करेगा और आउटपुट देगा. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, मैं इसी कोड के ऊपर ही घुमाऊंगा आपको और इसी पे समझाऊंगा सारी बात. आपने लिखा है कोड के अंदर ट्राई प्रिंट 5/0, क्योंकि पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर वर्क करता है पाइथन के अंदर. तो पाइथन के इंटरप्रेटर ने जैसे ही देखा 5/0, यानी कि ट्राई के अंदर ये एक तरीके की एक्सेप्शंस हैं, उसने देखा कि ट्राई के अंदर ये क्या है, एक एक्सेप्शन है. तो और जो एक्सेप्शन है वो कौन है, अभी ग्रैंड मदर, मतलब वो सबसे पहले इनकाउंटर हो गया, तो उसने वही एक्सेप्शन को प्रिंट कर दिया. उसने खत्म जीरो करेगा डिवीजन को यार, सर्च करने की कोशिश नहीं ये करी. खत्म. हेलो. जैसे ही ट्राई ट्राई के अंदर जो कोड लिखा है प्रिंट 5/0, जैसे ही वो कोड एनकाउंटर हुआ, जो कि क्या है, एक अनवांटेड कोड है, इंटरप्रेटर जंप करेगा सर्च करने के लिए एक्सेप्ट. इंटरप्रेटर को जो पहला एक्सेप्ट मिला वो मिला एक्सेप्शन का, जो कि जीरो डिवीजन को भी हैंडल कर सकता है, इसलिए उसने किसको रन कर दिया, एक्सेप्शन को रन कर दिया और प्रिंट एक्सेप्शन लिख दिया. ठीक है. अब लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर एक्सेप्शन के ऊपर, अभी यहां पे आप एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर लिख दो और एक्सेप्शन नीचे हो, है ना, मतलब हम इस कोड को रिवर्स कर दे, इस कोड को यहां लिख दें और इस कोड को यहां लिख दें, ठीक है, तब क्या बिहेवियर होगा. तो फिर वही कॉन्सेप्ट कि पाइथन जो है एक इंटरप्रेटर है, तो तब उसे इंटरप्रेटर को पहले कौन मिलेगा, जीरो डिवीजन एरर मिलेगा, तब वो जीरो डिवीजन एरर प्रिंट कर देगा. एनी डाउट प्लीज. हेलो. सर एक डाउट आया है. हाँ जी. अ, क्या एक्सेप्शन जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे लाइन नंबर 3 के अंदर, क्या वो हर एक टाइप का एरर को हैंडल कर लेगा? नहीं नहीं नहीं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे किस किस तरीके के हैंडल करता है, किस किस तरीके को हैंडल नहीं करता है. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वो बताने वाला हूँ, यू डोंट वरी, यू विल गेट इट. उसके अलावा उसके अलावा कोई और डाउट नहीं है अभी. है ना, देखिए ऐसा है, मैं आपको थोड़ा सा उस स्लाइड पे जाने से पहले बता दूं कि हमारे पास, जैसे सर ने या टीचर्स ने आपको इनहेरिटेंस डिस्कस किया होगा, तो वी हैव अ कंप्लीट इनहेरिटेंस हायरार्की इन एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो जो हायरार्की में ऊपर है ना, क्योंकि जब इनहेरिटेंस आपको पढ़ाया जाता है तो पढ़ाया जाता है जनरलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन. तो जो भी हायरार्की में ऊपर है, जो भी हायरार्की में ऊपर है, वो नीचे वो जनरलाइज्ड है, तो वो नीचे वालों को हैंडल कर सकता है. जैसे अगर आप देखें आपके सामने स्क्रीन आ गया होगा, सबसे ऊपर यहाँ पे कौन है, बेस एक्सेप्शन है, तो सबसे जनरलाइज्ड वही है. उसके बाद कौन है, एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन के अंदर कौन आ रहा है, अर्थमेटिक एरर आ रहा है, ओएस एरर आ रहा है, रन टाइम एरर आ रहा है, लुकअप एरर आ रहा है, सिंटेक्स एरर आ रहा है. अर्थमेटिक एरर में जीरो डिवीजन एरर है ना. तो यानी कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं सपोज एक्सेप्शन लिख दूं तो वो क्या हर एक को हैंडल कर लेगा, यस. एक्सेप्शन के नीचे जितने भी टाइप ऑफ एरर लिखे हैं, एक्सेप्शन उन सबको हैंडल कर लेगा. ठीक है. ऐसे ही ओएस एरर में क्या है, फाइंड नॉट फाउंड एरर, परमिशन एरर. लुकअप एरर में आपके पास इंडेक्स एरर है, की एरर है. सिंटेक्स एरर में इंडेंटेशन एरर है. अब वही क्वेश्चन फिर दोबारा से लेते हैं. सपोज कीजिए आई एम अ न्यू प्रोग्रामर, मुझे इंडेंटेशन एरर नहीं पता है, बट मैंने सिंटेक्स एरर के लिए कोड लिख दिया है, या मैंने सिंटेक्स एरर लिखा है ना, एक्सेप्ट में सिंटेक्स एरर लिख दिया, तो क्या वो इंडेंटेशन एरर को हैंडल कर लेगा, यस कर लेगा. जो कि जो जनरलाइज्ड है वो
हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो आई बिलीव वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जो बच्चे ने पूछा था कि क्या एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा। आपको देखिए, मैंने उसका आंसर इसलिए वो बोला था कि ये डिपेंड करता है कहाँ पे। सपोज कीजिए अगर हम लुकअप एरर की बात करें, तो लुकअप एरर जो है वो परमिशन एरर को हैंडल नहीं कर सकता, ना लुकअप एरर जीरो डिवीजन को हैंडल कर पाएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ऐसे ही अर्थमेटिक एरर जो है वो इंडेंटेशन एरर को नहीं हैंडल कर सकता। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो हायरार्की पे कहां पर है वो पर्टिकुलर थिंग। अगर वो हायरार्की पे वो पर्टिकुलर एरर एक्सेप्शन, अगर जिस पोजीशन पे उसके नीचे जो बाकी एक्सेप्शन है वो उसी को हैंडल कर पाएगा। ठीक है, एनी डाउट सो फार? उस बच्चे का डाउट क्लियर हो गया जो ही पूछ रहा था? रोहन, आप अगर डाउट क्लियर हो गया तो यस लिख दीजिए। एंड सो इज फैजल, if the doubt is clear just write yes। हाँ सर, क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट के अंदर एक छोटा सा कोड आ रहा है क्विज का, आई बिलीव। कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास अभी? So we have around 235 students। ओके गुड। सो मैं चाहता हूँ 235 में से काफी मैक्सिमम जितने आंसर दे सकते हैं वो आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि आप आंसर देंगे देन यू हैव अ हैबिट कि इंटरव्यूअर को आंसर देना आना चाहिए। ठीक है ना? चेक कीजिए। So within 20 seconds we have gotten responses and they're saying that the answer was A। गुड। हमारा 10 and 20 आंसर आएगा। ओके, We've received around 40 responses, maybe 50 गुड responses, गुड and everyone is गुड। saying the answer is A। हम्म, आई एम वेरी लकी वन कि आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे से और इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। ठीक है, आ, दूसरा लकी वन मैं यूं कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्चुअल में वो नहीं है जो आंसर आ रहा है। जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, थोड़ा सा मैंने वहां पे कुछ बच्चों को कुछ समझा रहा था। मैं फिर अगेन आपसे मैं प्रियांश सर, मैं कैन यू गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन रेक्टिफाई दिस, क्योंकि मेरे शायद जो पिछली क्लास में मैंने लिया वो सेव हो गया है इस पे स्क्रीन पे। Okay, so let's do this thing। Let's take attendance now, and students ID roll numbers will take attendance till And 11:31। I again rejoin you. I again rejoin you. Okay. Yeah, So just give me 2 minutes. the attendance is open till 11:31, and after that I won't be taking any more attendance values, like attendance first।
Shall I explain the topic? Hello. So give us 1 minute more. Okay, Like fine. more. So you can continue now. ओके, आई एक्सप्लेन यू, जिन्होंने नहीं दिया आंसर 10 और 20, जिन्होंने 10 और 20 दिया था एग्जैक्टली यस यही आंसर था, बट जिन्होंने नहीं दिया था मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान देना, बहुत सिंपल सा कोड है। ट्राई से रन होना स्टार्ट होगा। ट्राई में यू हैव अ वन कमांड प्रिंट, प्रिंट के अंदर fun 220 है, तो यानी कि num 1 के अंदर 2 चला गया और num 2 में 20, यहां से। फिर कंपेयर करा, num 2 इज ग्रेटर देन num 1, क्या 20 ग्रेटर है 2 से? द कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ? वैल्यू एरर। तो यानी कि इंटरप्रेटर यहां से जंप कर जाएगा, कहां पर? वैल्यू एरर पे। इंटरप्रेटर यहां जंप कर गया। यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है ये? 10 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ। अब 10 प्रिंट होने के बाद, क्योंकि एक्सेप्ट का एल्स तो रन हुआ ही नहीं, कहाँ पे चला जाएगा ये? क्योंकि हमने बोला था फाइनली हमेशा रन होगा, तो फिर जंप कर गया कहाँ पे? फाइनली पे। और क्या प्रिंट कर दिया? 20 रन कर दिया। एल्स कब रन करेगा? अगर आपका वैल्यू एरर जनरेट नहीं होता तो आपका एल्स सेक्शन वर्क करता। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है। ये 10 और 20 क्लियर हो गया? हेलो। Guys, अगर clear हो गया तो please start में clear या yes or thumbs up or whatever you want to write. Write that. स्पेशली वो लोग And लिखना जिन्होंने आंसर नहीं दिया था। हेलो। the students are responding. Please wait for 30 seconds. स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्डेड, अगर आपको ये समझ आए यहाँ तक क्लियर हो गया 10 और 20 कैसे आया। सो आई मूव अहेड, और मैं ये बताऊंगा कि कब एल्स रन करेगा। Yeah. The only question we have gotten so far is around else, and so I will explain how else works just now. So I believe we can move forward. ओके फाइन। सपोज समवन changes the parameter. The first parameter is 20 and the second one is 2. So it means num1 contains 20 and num2 contains 2. Now if you compare num1 with num2, that is 2 is greater than 20, the condition is false, then it will jump to else part, num1 minus num2. Num1 minus num2 is 18. Now from here it jumps to else part of except. It will print 15 and finally is always run. So the next output is 20. So at the time the output is 15 and 20 if you change the parameters. So in this case, except will not occur because except occurs when when the value error is raised. Since there is no value error is raised, it will return num1 minus num2 and the else section will be run. So we get 15 and 20 as our output. Any doubt so far? जिनका डाउट था else statement किस तरीके से रन करेगा, is it clear? Answer. Asta says no doubt. Okay. So वैभव का एक डाउट आ रहा है कि अगर just wait a second and like raise your hand and I'll get back to you. तो वैभव is asking कि अगर हमारे पास exception होता and कोई भी exception काम नहीं करता तभी हमारा else काम करेगा. Is that the right statement? एक प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपना. ये जरूरी नहीं है एक्चुअली। अगर मेरे एल्स इस एल्स सेक्शन में यहाँ पे हमारे पास num1 माइनस num2 है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही बेसिकली एक्सेप्शन फायर करवाया, दैट इज वैल्यू एरर। इसलिए इफ यू हैव अ मल्टीपल एक्सेप्शन विद अ सिंगल इफ एल्स if you have a multiple exception that will run. So else part, in this case the else part only runs
when there is no value error in this case. Hello. Yes, sir. Whether आपका डाउट क्लियर हुआ? If not, I'll give you permission to open your microphone and ask directly. आंसर क्लियर हो गया, we can move forward. सिंपल सा वैभव, एक फंडा याद रखना है, अगर एक्सेप्ट नहीं लिखे होंगे तो एल्स रन होगा. अगर आपका कोई भी एक्सेप्ट उस पर्टिकुलर कोड को एंटरटेन नहीं करेगा तो आपका एल्स फायर हो जाएगा. ठीक है. तो अभी हम लोगों ने फाइनली को डिस्कस किया और ये बात समझा कि किस तरीके से वैल्यूज 10 और 20 रन हुआ और एग्जीक्यूट होकर हमारे पास फाइनल आंसर आया. ये बात प्लीज बी रिमेंबर, क्योंकि आप लोग जावा बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, थोड़ा बहुत जावा भी आप लोगों ने पढ़ रखा है. फाइनली कोड इज दैट कोड विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ एन एक्सेप्शन वॉज रेज्ड और नॉट. एक्सेप्शन है कि नहीं है उसको आपको नहीं ध्यान देना है, आपका फाइनली फिर भी रन करेगा. क्योंकि हमारा काफी हम लोगों ने काफी स्टडी करके देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो इस फाइनली पे आते हैं वहां पे इन्फिनिटी में. तो ये बात आपको ध्यान रखना है. ठीक है ना. इसके अलावा जो आपने अभी वैभव ने भी क्वेश्चन पूछा था उसका दोबारा से मैं आंसर दे देता हूँ. एल्स कीवर्ड, अब यहाँ पे आप नीचे वैभव पढ़ सकते हैं. यू कैन यूज अ कीवर्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ नो एरर वॉर रेज्ड. अगर एरर रेज नहीं होगा तो क्या रेज होगा हमारा? एल्स पार्ट रेज होगा, है ना. तो उसको हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे. ठीक है. और जो कोड पर्टिकुलरली अभी लिखा भी हुआ है फिलहाल, आप उसको अगर रन करेंगे तो यू विल गेट द गुड आउटपुट एंड इट विल क्लियर योर डाउट्स आल्सो. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज रेज. ओके. हम लोगों ने ट्राई देख लिया कैसे वर्क करता है, हमने एक्सेप्ट देख लिया, हम लोगों ने फाइनली देख लिया, हम लोगों ने एल्स के बारे में देख लिया. अब नेक्स्ट जो कीवर्ड है दैट इज रेज. रेज ऑलरेडी यूज हुआ है बहुत जगह पे, आपने देखा कि रेज कर क्या रहा है. लेकिन क्या रेज बिना ट्राई और एक्सेप्ट के रन करता है ना. जैसे ट्राई और एक्सेप्ट जो है, मैंने बोला था कि वो एक ब्लॉक है ना, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है. तो अगर ट्राई है तो उसका एक्सेप्ट जरूर होगा. बट अगर आप देखें रेज, रेज कीवर्ड इज यूज टू रेज एन एक्सेप्शन. वी कैन डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ एरर टू रेज. इनसाइड द रेज हम ये बात बताते हैं कि किस तरीके का एरर ऑकर होना है एंड द टेक्स्ट टू प्रिंट टू द यूजर. जैसे फॉर एग्जांपल जो नीचे हमने एक एक्स में एक हेलो स्ट्रिंग लिया है ना, हेलो इज अ स्ट्रिंग हियर. इफ नॉट टाइप एक्स इज इंट, अगर टाइप एक्स इंट नहीं है, यहाँ पे टाइप एक्स क्या है? स्ट्रिंग है, नहीं है पक्की बात. तो क्या रेज हुआ? टाइप एरर. क्या मैंने यहाँ पे ट्राई लिखा है? नहीं लिखा है. क्या मैंने यहाँ एक्सेप्ट लिखा है? नहीं लिखा है. फिर भी देखो रेज रन हो रहा है. रेज टाइप एरर ओनली इंटीजर इज अलाउड, है ना. तो यहाँ पे रेज क्या कर रहा है? जहां पे उस पर्टिकुलर टाइप का एरर है वहीं पर ही हम क्या लिख देते हैं? उसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं. यहाँ पे जंप नहीं हो रहा है. यहाँ पे रेज एक पर्टिकुलर एक्सेप्ट को जंप करके नहीं सर्च कर रहा है. यहाँ पे रेज क्या कर रहा है? रेज के साथ में ही टाइप एरर, मतलब उस एरर को लिखा गया और वो एरर करता क्या है, उस एरर का मीनिंग क्या है, या हम यूजर को क्या आउटपुट देना चाहते हैं वही हम लिख देते हैं. तो यहाँ पे ट्राई का यूज भी नहीं करा और हमने एक्सेप्ट करा. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए कि रेज कैन वर्क अलोन. उसको ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, इन फाइनली इन सबकी जरूरत नहीं है. बट यहाँ पे जो हमारा कोड अभी तक जो हम एग्जीक्यूट करते आए हैं वो भी हमने आपको राइट हैंड साइड पे दिखाया है. एक फंक्शन एफ यू एन है, नम वन नम टू है. नम और नम टू को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कंपेयर कर रहे हैं. और यहाँ पे हमने रेज वैल्यू एरर यहाँ से कॉल किया और जैसे ही इंटरप्रेटर ने ये एनकाउंटर करा वो यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, इस कोड को रन नहीं करेगा. जैसे ही उसे जंप करके यहाँ आया और इसके अंदर प्रिंट एन को उसने प्रिंट कर दिया. यहाँ तो कोई डाउट है तो प्लीज पूछें. रेस कीवर्ड में कोई डाउट? सर अभी तक हमारे पास कोई डाउट नहीं आया है. इफ इट कम्स आई विल टेल यू. वी कैन मूव फॉरवर्ड. ओके. तो होपफुली अभी तक मेरे ख्याल से जितने कीवर्ड्स हमने 5 कीवर्ड डिस्कस करे आपको वो 5 कीवर्ड समझ आ गए होंगे. तो नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है. जैसे आपने पहले इतना अच्छे तरीके से आंसर दिया था तो प्लीज बी पंचुअल. सारे कीवर्ड्स आपको पता है अब. आपने अगर पहले भी नहीं पढ़ा है एक्सेप्शन हैंडलिंग तो अब आप लोगों ने पढ़ लिया है. तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा.
मयंक, मैं आपके क्वेश्चन को अभी इसी में रेज करूंगा। आज अगले क्वेश्चन को प्लीज आंसर करिए सब लोग। It's nice that within 30 seconds you're able to answer, and sir, everyone is saying the answer would be D. यहाँ पे आंसर वुड बी D for Delhi. ओके, We've गुड gotten about 50 responses so far, and they are गुड all saying that the answer is D. ओके। ओके, यस द करेक्ट आंसर इज डी। एंड दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम आंसर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। उनको कुछ मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ गया जो मैं डिलीवर करना चाहता था। और जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, मैं उनके लिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कोड कैसे रन करेगा, सो दैट कि दे विल गिव द आंसर इन द नेक्स्ट, है ना। जब भी नेक्स्ट टाइम हम लोग इस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे या उनको प्रॉब्लम शीट मिलेगी सॉल्व करने के लिए, तो दे कैन सॉल्व इट, ठीक है। तो अगर आप देखें तो कोड कैसे रन कर रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट है x इक्वल्स टू 0। हम ट्राई में आए, ट्राई ब्लॉक पे सबसे पहले प्रिंट x है, तो आपने x की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 0। तो मैं प्रिंट वाले को यहाँ लिख रहा हूँ, 0 प्रिंट हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर आया प्रिंट 1/x। तो 1/x का मतलब हुआ 1/0। दैट इज वन काइंड ऑफ एरर, है ना। तो क्या हुआ, इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक्सेप्ट को ढूंढेगा इसके रिस्पेक्ट में। तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 0 डिवीजन एरर। उसके अंदर क्या लिखा है, एरर मैसेज। तो यानी कि ये वाला मैसेज यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो 0 प्रिंट हो गया और एरर मैसेज प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि फाइनली तो प्रिंट होना ही होना है इन एनी केस। एक्स में 0 है, 0 + 1 क्या हुआ, 1 हो गया। तो 0, एरर मैसेज और 1 प्रिंट हो गया अभी हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ट्राई एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर जो कोड एग्जीक्यूट हुआ उसका लाइफ उसी ब्लॉक के अंदर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। वहीं वो इंक्रीज हो रहा है, वहीं वो डिक्रीज हो रहा है, वहीं सब कुछ हो रहा है। तो जब आप बाहर आए इस कोड से, तो वहां लिखा है प्रिंट x + 2। एक्स में कितना है, 0 है। 0 + 2 कितना हो गया, 2। तो हमारा आउटपुट क्या हुआ, 0, एरर मैसेज, 1, 2। किसी स्टूडेंट को ये तो लग रहा है यहाँ पे आंसर 3 आना चाहिए था एट द एंड? हाउ मेनी थिंक दैट 2 की जगह 3 आना चाहिए? Um, guys, respond. Do you think the answer would be 3 by any chance? Do you think at the end answer must be 3? If I make one option as 0, error message, 1, 3, then किसी को ये तो नहीं लग रहा था कि ये आंसर आ सकता है, ये बताएं। Nice, sir. So we did get responses saying that the answer might be B, B for Bombay. ओके, ये इन्होंने अभी अभी आंसर दिया ये वाला या पहले दे रखा था आंसर? So पहले दिया था. अब इनको समझ आ गया? I just asked Astha and Rohan, do you understand like why the answer is D and not B? आस्था और रोहन, ये समझिए ट्राई के अंदर देखिए इंटरप्रेटर है, बार बार आपको बात बोल रहा हूँ। इंटरप्रेटर पहले यहाँ गया हुआ इस स्टेप में, फिर ट्राई के अंदर आया हुआ, तो यानी कि इस स्टेप के अंदर तो यहाँ तो एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा करेगा ना। इन एनी केस 0 तो प्रिंट करेगा करेगा। Yes sir, clear है. ओके, हमारे पास एक और क्वेश्चन आया था, अगर आप पिछले वाले एग्जाम्पल पे जाएंगे हाँ वहां बताऊँ पे आप, बताएं सर कौन सा क्वेश्चन आया था। सर पिछले वाले कोड के ऊपर था, जिससे पहले हमने कोड देखा था। कोई नहीं, आप बताएं बताएं, मेरे को कोड है या थोड़ा सा। क्वेश्चन था कि अगर हमने सपोज वहां पे वैल्यू एरर लिखा था, वैल्यू एरर के अंदर हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया एंड कैपिटल ई की जगह खाली कैपिटल बी लिखा, तो क्या हमारा एक्सेप्शन ब्लॉक रन करेगा या फिर कुछ एरर आएगा या फिर क्या होगा इन दैट केस? आ, आ, जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, एट द एंड जब हम माइक ओपन कराएंगे तब मैं आपको एक बार रन करके दिखा दूंगा इस कोड को, ठीक है ना। मुझे लग रहा है आपको ये लग रहा है कि वो एसकाई कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे, शायद वी विल गेट समथिंग, है ना। तो हम लोग उसको एक बार रन करके देख लेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, ओके। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप डाल देना, तो हम उसको एक बार डील कर लेंगे, ठीक है। वो काफी पीछे का है कोड, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात भी। आपको जहाँ पे डाउट है मुझे वो भी समझ आ गया है।
बट उसको हम ऐसे वर्बली नहीं करेंगे, उसको हम रन करके देखेंगे, तब वो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है। So Mayank will take this question at the end of the class, and so we can continue this. ओके, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं एक लेमन टर्म से पहले चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सो आई विल ट्राई वन लेमन एग्जाम्पल बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको वो लेमन एग्जाम्पल समझ आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक वी कैन इजिली डू इट। ओके, तो हम उस लेमन एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ए, बी, सी, डी, दीज आर द 4 पर्सन जिनका एज ग्रुप अलग अलग है। सपोज कीजिए ये 25, सी 32, 40, 45, 20 फीमेल। ओके, ऐसे मान लेते हैं। दे मतलब ये ए बी सी डी एक ही घर में रहते हैं, और अ, आज संडे है और घर में है सब। ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं संडे है और घर पे है सब। ना डोरबेल बजती है, डोरबेल बजी। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो एक और प्रॉब्लम जो इन्फिटिक्यू में आने वाला है आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ठीक है, और किसी को नहीं समझ आए तो प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर डाउट्स। क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया, ये सिनेरियो जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप कोई भी मतलब जो 2 या 3 प्रॉब्लम आते हैं इस तरीके के, तो आप एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो। ठीक है ना। तो मैंने एज डाल दिया है। ए की एज 45 है, एज 45 ईयर्स है। बी की 40 ईयर्स है। सी की 32 ईयर्स है। डी की 25 ईयर्स एज है ना। डोरबेल बजती है घर की। तो ए, क्योंकि घर के बड़े हैं, वो बोलेंगे बी को कि ओपन द डोर, कोई आया है। ठीक है। बी किसको बोलेंगे? बी बोलेंगे सी को, बेटा ओपन द डोर, कोई घर पर आया है। सी किसको बोलेंगे? डी को, क्योंकि डी सबसे छोटा है घर में, कि ओपन द डोर, कोई आया है ना। अब डी क्या बोलता है? डी रिप्लाई करता है। डी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो डोर ओपन करेगा या डोर ओपन नहीं करेगा। तो सपोज एज यूजुअल हम लोग का मन नहीं करता है डोर ओपन करने का, तो डी ने सी को रिप्लाई करा कि मेरा कल पेपर है, मैं पेपर के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो आप डोर ओपन कर दो, मैं डोर ओपन नहीं करूंगा। तो जो प्रॉब्लम ऑकर हुई डोर ओपन करने वाली, अब वो किसके पास चली गई? सी के पास चली गई। अब सी क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं कि मेरे ऑफिस से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आया। किसको बोलेंगे? सी बोलेंगे जिसने सी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दी थी सी को? बी ने दी थी। तो सी बी को बोलते हैं कि मेरे ऑफिस से इंपॉर्टेंट कॉल आया हुआ है, मुझे ऑफिस की मीटिंग अटेंड करनी है, तो मैं डोर ओपन नहीं कर सकता, प्लीज आप जाके डोर ओपन कर दो। तो प्रॉब्लम कहां चली गई? बी के पास। अब बी ने, क्योंकि बी देखो, बी के साथ मैंने फीमेल लिखा हुआ है, तो यानी कि वो आंटी जी है, कोई बड़े हैं हमसे, तो वो किचन में है। उन्होंने बोला ए को कि आप जाके खुद दरवाजा खोल दीजिए, मैं किचन में काम कर रहा हूं या कर रही हूं। तो प्रॉब्लम कहां पहुंच गया? ए के पास। अब ए के पास ही वही 2 ऑप्शन, या तो ए अब डोर ओपन करे या डोर ना ओपन करे। अगर ओपन करे यानी कि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और अगर वो डोर ओपन ना करें तो क्या होगा? तो जो पर्सन आया हुआ है वो बाहर से ही चला जाएगा, वो घर के अंदर नहीं आ पाएगा, है ना। अब यहां तक ये बात समझ आ गई आपको, प्रोपोगेशन कैसे हुआ। अब इसके आगे बढ़ते प्रोग्रामिंग के अंदर ये कैसे बात आ रही है। अब मैं प्रोग्रामिंग वाली बात पे लेकर आ रहा हूं, ताकि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, है ना। अब ये लेमन टर्म में मेरे ख्याल से कुछ सिनेरियो आपके दिमाग में बन गया होगा। जनरली हमारे घरों में यही होता है। ठीक है ना। तो अब हम आ रहे हैं किसके ऊपर? अब हम आ रहे हैं प्रोग्रामिंग में, इसी बात को लेकर। तो सपोज कीजिए ए बी सी डी, हमारे पास 4 फंक्शंस हैं। वी हैव ए बी सी डी 4 फंक्शन। ए कॉल करता है बी को, बी कॉल करता है सी फंक्शन को, सी कॉल करता है डी फंक्शन को। तो ए बी सी डी यहाँ पे क्या है? हमारे पास फंक्शंस हैं जिनमें ए बी को कॉल करता है। ऐसे मैंने बोला ना, ए ने बी को बोला था डोर ओपन करने के लिए, यानी ए ने कॉल करा था बी फंक्शन को, बी ने किसको कॉल करा? सी फंक्शन को, सी ने किसको कॉल करा? डी फंक्शन को। और एक्सीडेंटली डी वाला जो फंक्शन है उसके अंदर कोई अनवांटेड कोड है। एक्सीडेंटली जो डी वाला फंक्शन है उसके अंदर
कोई अनवांटेड कोड, अनवांटेड कोड क्या होता है हमारे हमारी लैंग्वेज में, अभी हम पढ़ रहे हैं सुबह से, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन है वहां पे क्या है, एक एक्सेप्शन है। सपोज करो डिवाइडेड बाय जीरो होगा, सपोज करो वैल्यू एरर होगा, हो सकता है वो इंडेक्स एरर हो सकता है वो इंडेंट एरर हो। देर इज सम काइंड ऑफ एक्सेप्शन इज अवेलेबल एट डी, बट देर इज नो एक्सेप्शन हैंडलर। एक्सेप्शन तो है लेकिन वहां पे कोई एक्सेप्शन हैंडलर नहीं है, यानी कि ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक वहां पर नहीं है। तो क्या होगा, तो इंटरप्रेटर सर्च करेगा, जब वो प्रॉब्लम ऑकर हुई डी में, इंटरप्रेटर सर्च पहले डी में करेगा। अगर उसमें डी में कहीं हैंडलर नहीं मिला तो वो जंप कर जाएगा कहां पे, सी पे, जिसने उसको कॉल किया था ना, सी ने डी को कॉल किया था ना, तो कहां चला जाएगा इंटरप्रेटर, सी पे। फिर सी की फंक्शनलिटीज को चेक करेगा कि क्या सी में तो कहीं एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा है, उसको सर्च करेगा। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कहां जंप करेगा, फिर वो बी पे जंप करेगा। फिर बी में ढूंढेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कहां जाएगा, ए में जाएगा। फिर ए में सर्च करेगा, ए में मिल गया ठीक, नहीं मिला तो क्या करेगा, मेन को कॉल करेगा, प्रोग्राम को क्रैश करेगा, और क्रैश करने के बाद जो बिल्ट इन एक्सेप्शन है, आपको याद है मैंने एक हायरार्की आपको दिखाई थी जब मैं आपको सॉरी एक्सेप्शन बारे में बता रहा था, तो मैंने वहां पे एक हायरार्की दिखाई थी। तो वो फिर बिल्ट इन एक्सेप्शन पे जाएगा और वहां से कुछ ना कुछ प्रिंट कर देगा। आर यू गेटिंग दिस? जैसे अब यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा मैंने कोड लिखा हुआ है, एक छोटा सा कोड लिखा है। इसके अंदर हमारे पास दो फंक्शन है, एक फू नाम से, एक एफ यू एन नाम से है, और एक मेन नाम से है ना। आपको पता है कुछ भी चीज रन होगी वो कहां से रन होगी, मेन से रन होगी। तो मेन में हमारे पास तीन फंक्शन कॉल हो रहे हैं, ठीक है। एफ यू एन में सबसे पहले आपने 10,5 फायर किया, 10,5 किया एफ यू एन में, 10 यहां पर आ गया और 5 यहां पर आ गया। फिर कंपेयर किया हमने 10 और 5 को, हमने किसको कंपेयर करा, 10 और 5 को। तो 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज फॉल्स, है ना। कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स होकर आप कहां पे चले गए, एल्स सेक्शन में चले गए। वहां पे नम वन प्लस नम टू करा, जब आपने नम वन प्लस नम टू करा तो इस केस में यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई, ठीक है। और किसको कॉल करा यहाँ पे, इसने फू को, यानी कि 15 जो वैल्यू है वो यहाँ से जंप करके वीएल में आ गई, तो 15 वैल्यू यहाँ पे असाइन हो गई। फिर आपने 15 को डिवाइड करा 15 से, अगर आप 15 को 15 से डिवाइड करो तो क्या आउटपुट आएगा, व्हाट इज द आउटपुट अगर आप 15 को 15 से डिवाइड कर दोगे तो, एनीवन, व्हाट इज द आउटकम इफ आई डिवाइड 15 बाय 15? So they're saying 1. वेरी गुड, आंसर है भी सामने, यहाँ पे देखिए 1 लिखा भी हुआ है ना। तो 1 प्रिंट होगा, तो दैट इज ओके। फिर ये फंक्शन कॉल हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला, है ना। फिर सेकंड फंक्शन कॉल होगा, सेकंड फंक्शन में कौन सी वैल्यूज भेज रहे हैं हम, 5 और 10। तो 5 कहाँ चला गया, नम वन में, 10 कहाँ चला गया, नम टू में। तो 5 इज नम वन, 10 इन नम टू। नाउ वी चेक द कंडीशन, 5 इज लेसर देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। ट्रू तो क्या लिखा आपने, नम वन माइनस नम टू, नम वन में कितना है 5 है, नम टू में 10 है, तो 5 माइनस 10 इज -5, यानी ये वैल्यू जो है हमारी क्या हो गई, माइनस का 5 हो गई। अब ये फू में जंप कर गया, तो -5 डिवाइडेड बाय -5, अगेन द आंसर इज 1, दैट इज ऑल्सो ओके, नो इश्यूज, प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है ना। लेकिन जब मैंने क्या करा, 5,5 किया, जब 5,5 आपने जंप करा तो नम वन में भी 5 है और नम टू में भी 5 है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, नम वन माइनस नम टू दैट इज 0, यानी इसका आउटकम क्या आया मेरे पास, इसका आउटकम मेरे पास 0 आ गया, और फू को कॉल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 डिवाइडेड बाय 0, आप लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 0 डिवाइडेड बाय 0 भी क्या है, नॉट डिफाइंड टर्म है, नॉट डिफाइंड है ना। लेकिन आप देखिए क्या यहाँ कोडर ने इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा है, नहीं लिखा है, उसने ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं लिखा है। तो नहीं लिखा है तो क्या होगा, पहले तो सर्च करेगा इंटरप्रेटर इसी कोड के अंदर, नहीं मिला उसको, फिर वो सर्च करेगा कहाँ पे, बिल्ट इन एक्सेप्शन में। जब वो बिल्ट इन एक्सेप्शन में सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि एक जीरो डिवीजन एरर होता है, और वो प्रिंट कर देगा इंटीजर डिवीजन और मॉडुलो बाय जीरो। बट इन प्रोग्रामिंग टर्म्स, whatever is written from this trace back to this
It is called crash. This is called crash because we not handled it by ourselves. ये सिस्टम अपने इनबिल्ट लाइब्रेरीज या बिल्ट इन एक्सेप्शंस को रन करके उसने ये रिजल्ट्स निकाले हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आवर प्रोग्राम विल क्रैश। तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल में जो मैंने आपको बात समझाई थी, इफ फंक्शन ए कॉल्स फंक्शन बी विच इन टर्न कॉल्स फंक्शन सी and an exception occur in function C. If it is not handled in C, the exception passes to first B. अगर B ने handle कर लिया तो very good, and then A. Last point कह रहा है if not handled, ना A ने handle करा, ना B ने handle करा, ना C ने handle करा, an error message is spit out and our program come to a sudden unexpected halt. प्रोग्राम रुक जाएगा। जैसे इससे पहले जो कोड ये ट्रेस बैक वाला था, दिस इज अनएक्सपेक्टेड हॉल्ट। Are you getting this? Any doubt, please? So far, any doubt? सर कोई डाउट नहीं है अभी तक। स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट है तो लाइक रेज योर हैंड, आप अपने चैट बॉक्स में लिखें एंड विल टेक केयर ऑफ इट राइट अवे। It's clear to Webhub and everyone else is saying also that it's clear to them. Okay, good. I believe we may open the mic and we will chat with them. So we still have like 15 minutes in the class, so it's up to you. Okay. Start the next topic or open mics. I believe we stop today here only because they have to learn it and there are many topics that I finished today. Okay, sir. Okay, fine. So we can stop the recording and we can open their mic.